منافع لہم اپنے لیے فائدے کی چیزیں، وَيَذْكُرُوا اور تاکہ وہ نام ذکر کریں اسم اللہ اللہ کے نام کا، فی ایام معلومات متعین دنوں میں، علی ما رزقہم ان چوپایوں پر جو اللہ رب العزت نے ان کو دیے ہیں پالتو جانوروں میں سے، من بہیمۃ الانعام پالتو جانوروں میں سے، فکلوا تو آپ کھاؤ منہا اس میں سے، وَأَطْعِمُوا اور آپ کھلاؤ البائس پریشان حال کو، الفقیر جو فقیر ہو، ثم پھر لیقضوا چاہے کہ وہ دور کر دیں تفثہم اپنے میل کو، وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ اور چاہے کہ وہ پورا کر دیں نذورہم اپنی نذروں کو، وَلْيَطَّوَّفُوا اور ان کو طواف کرنا چاہیے بالبیت العتیق اس گھر کا جو قابل تکریم ہے۔ سورہ حج کی آیت نمبر 28 اور آیت نمبر 29 تلاوت کی گئی۔ اس سے پہلی آیتوں میں بھی حرم مکی خانہ کعبہ کا ذکر تھا کہ مشرکین کی عادت تھی وہ خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے سے روکتے تھے اور عبادت کرنے والوں کو پریشان کرتے تھے۔ ضمناً ایک دھمکی بیان کی گئی کہ حرم مکی میں گناہ کرنا یہ ظلم عظیم ہے اور جو وہاں گناہوں کا ارتکاب کرے گا ہم اس کو سخت سے سخت سزا دیں گے۔ آیت نمبر 26 میں خانہ کعبہ کے معمار کا ذکر تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ان کے ساتھ تھے، اور خانہ کعبہ کی تعمیر کا ذکر تھا۔ پھر اگلی آیت میں خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعائیں کی تھی، پہلے پارے میں 4 دعاؤں کا ذکر ہے، ان کا ذکر یہاں فرمایا نہیں۔ خانہ کعبہ کی تعمیر جس مقصد کے لیے کی گئی تھی کہ اللہ کے اس گھر کو آباد کیا جائے، اللہ کے اس گھر کا طواف کیا جائے، حج کیا جائے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا گیا کہ آپ اعلان کیجئے تاکہ لوگ حج کرنے آئیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جبل ابو قبیس پر چڑھ کر آواز لگائی، یا ایھا الناس ان اللہ قد فرض علیکم الحج۔ عرض کیا گیا تھا کہ حدیث میں آتا ہے جہاں جہاں یہ روحیں رہتی تھی وہاں تک جو ہے یعنی عالم ارواح تک یہ آواز پہنچی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں جو ذرات کی شکل میں روحیں تھی وہاں تک پہنچی، اور جس نے لبیک کہا قیامت تک اس کو حج بیت اللہ اور بیت اللہ کی زیارت نصیب ہوگی۔ فرمایا تھا کہ ابراہیم اعلان کرنا آپ کا کام ہے، پوری دنیا تک پہنچانا یہ بات میرے ذمہ ہے، آپ اعلان تو کرو۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان بھی کیا۔ آج کی جو آیتیں تلاوت کی گئی ہیں، رب تعالیٰ نے بندگان خدا کو، حاجیوں کو 4 حکم دیے ہیں ان 2 آیتوں میں کہ آپ جب حج بیت اللہ کے لیے جائیں گے تو آپ کو ان 4 حکموں پر عمل کرنا ہے۔ یوں تو حج کے مسائل اور حج کے احکام
तफसीली हैं, हदीस की किताबों में है और फ़िक़्ह की किताबों में है और कुरान करीम की आयत के ज़ेल में तफसीर की किताबों में भी हैं, जहाँ जहाँ रब ताला ने हज का जिक्र और हज के अहकाम का जिक्र किया है। लेकिन यहाँ इस जगह सूरह हज में चंद अहकाम का जिक्र किया है। उसमें से पहला हुक्म है लियशहदू मनाफ़िअ लहुम, हज बैतुल्लाह की तामीर, खाने काबा की तामीर की गई, हज बैतुल्लाह का हुक्म दिया गया। तो हज बैतुल्लाह के कुछ दीनी फायदे हैं और कुछ दुनियावी फायदे हैं। दीनी फायदा, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो हज करता है और उसमें कोई बेहुदा काम और गुनाह का काम नहीं करता है, जब वो लौटता है हज से तो ऐसा लौटता है जैसे कि अभी माँ के पेट से पैदा हुआ है, उसके जिम्मे कोई गुनाह नहीं होता। तो हज बैतुल्लाह की वजह से इंसान की सरापा मग़फ़िरत हो जाती है, ये दीनी फायदा है। दूसरा दीनी फायदा ये है कि हज बैतुल्लाह से बंदे का ईमान ताज़ा होता है, उन मकामात को देखता है, उन मकामात की ज़ियारत करता है और उन अहकाम को अंजाम देता है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अंजाम दे चुके हैं, जो हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम अंजाम दे चुकी हैं, जो लाखों के हिसाब से अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम अंजाम दे चुके हैं, मेरे और आपके आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंजाम दे चुके हैं। तो हज से ईमान भी ताज़ा होता है। तीसरा दीनी फायदा ये है कि जब हज बैतुल्लाह पर आदमी जाता है तो पूरे आलम के मुसलमानों से मुलाकात होती है, तो एक दूसरे से अपने अपने इलाके, अपनी बस्तियों, अपने शहरों और अपने ममालिक की इस्लामी हालत पूछते हैं। आपके यहाँ इस्लाम की क्या हालत है, मुसलमानों की क्या हालत है और मुसलमान किस दर्जे के हैं और दीन का काम किस पैमाने पर होता है। तो वहाँ मुलाकात होती है, तारुफ होता है, तारुफ के बाद जो है दीन और इस्लाम के सिलसिले में बातें होती हैं। ये भी जो है एक दीनी फायदा है। सबसे बड़ा एक दीनी फायदा ये है, अब तो बेदीनी का माहौल है। ज़माना कदीम में इस्लामी हुक्मरान हुआ करते थे और इस्लामी हुक्मरान जब हज करने के लिए आते थे तो वो सर जोड़ कर बैठते थे और पूरे आलम में दीन इस्लाम के निफाज के सिलसिले में गौर व फिक्र करते। अब तो हाल ही बुरा है, खुद जो है इस्लामी बादशाह, इस्लामी मामालिक के बादशाह ही बेदीन है। उनकी ज़ाहिरी रंगत किसी भी तरीके से ये दलालत नहीं करती है कि ये मुसलमान है, ज़ाहिरी शक्ल व शबी। लेकिन ज़माने कदीम में अगरचे कमज़ोर लेकिन इस्लामी खुलफा हुआ करते थे, वो हज बैतुल्लाह पर ही मुलाकात करते थे। मुलाकात करने के बाद मिल बैठ कर बातें करते थे कि आलम में इस्लाम का निफाज कैसे हो, इस्लाम पूरी दुनिया में कैसे पहुँचे। तो ये भी एक दीनी फ़ायदा है। और हज का एक दुनियावी फ़ायदा है, वो हदीस शरीफ में आता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो हज और उम्रे को एक साथ करता है वो फ़क्र व फाका से मोहताज, वो फ़क्र व फाका से और मोहताजगी से पाक हो जाता है, बच जाता है, महफूज रहता है। यानी अगर किसी इंसान ने फ़क्र व फाका से निजात पानी है तो वो हज और उम्रा एक साथ करे। हदीस शरीफ में ताबिरू बैनल हज वल उम्रती फ़इन्नहुमा यनफियानिल फ़क्र, हज और उम्रे को एक साथ किया करो इसलिए कि ये इस तरीके से फ़क्र को दूर करते हैं जिस तरीके से भट्टी लोहे से जंग को दूर करती है, और इसी तरीके से जो है सोने के जंग को दूर करती है ये भट्टी, चांदी के जंग को दूर करती है।
अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हज का एक दुनियावी फायदा है। वो दुनियावी फायदा ये है कि आदमी फक्र फाका से, तंगदस्ती से और मुफलिसी से महफूज रहता है। सबक पढ़ाते हुए दारुल देवबंद के साबिक शेखुल हदीस मुफ्ती सईद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि ये बताना कि हज और उम्रा एक साथ आप करेंगे, उसके बाद फक्र फाका और तंगदस्ती दूर हो जाएगी, ये तकरीर से ताल्लुक नहीं रखता है या बताने से ताल्लुक नहीं रखता है। आप हज और उम्रे को एक साथ करेंगे, खुद ब खुद मुशाहदा होगा कि रब ताला आपको दुनियावी तमाम परेशानियों से महफूज फरमाएंगे, खासकर माली परेशानी से रब ताला हिफाजत फरमाएंगे। तो हज का एक फायदा बयान फरमाया, लियशहदू मनाफिअ लहुम, ताकि वो हाजी लोग अपने लिए मुनाफे को, नफा की चीज़ों को देखेंगे। वयज़कुरु स्मल्लाहि अलैहि फी अय्यामिन मालूमातिन अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम। दूसरा हुक्म यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हज तमत्तु करता है या हज क़िरान करता है, उन पर तो लाजिम है कुर्बानी करना, और जो तना हज करता है तो उस पर मुस्तहब है। इरशाद फरमाया कि जब आप जाएं हज करने के लिए तो वहां पर मुतअय्यिन दिनों में हज के दिनों में खास दिन हैं जो कुर्बानी के लिए है। 10 है, 11 है, 12, 10 ज़िलहिज्जा है, 11 ज़िलहिज्जा है, 12 ज़िलहिज्जा है। फरमाते हैं इन मुतअय्यिन दिनों में आप पालतू जानवरों को ज़बह करो। अनआम ये नामुन की जमा है, ये ऊंट पर बोला जाता है, लेकिन उसके बाद के दौर में फिर दिगर बड़े जानवरों पर भी इसका इतलाक होता था, उनको भी जो है अनआम कहते थे। और फिर आदमी बकरी और भेड़ साथ ले जाए, उनको कुर्बान करे। कुर्बानी के जानवर हैं, बकरा है, बकरी है, दुम्बा है, दुम्बी है, भेड़ है, और उसी जो है नर और मादा दोनों ज़बह हो सकते हैं। भैंस नर और मादा दोनों ज़बह हो सकते हैं, गाय नर और मादा दोनों ज़बह हो सकते हैं, और इसी तरीके से जो है ऊंट नर और मादा दोनों ज़बह हो सकते हैं। इनके लिए उम्रें भी हैं, ऊंट के लिए 5 साल की है और दिगर बड़े जानवरों के लिए 2 साल की उम्र, भेड़ और बकरे के लिए 1 साल की उम्र। भेड़ में ये गुंजाइश है कि अगर वो 1 साल का लगे और हो वो 1 साल से कम, 6 महीने और या उससे ज्यादा का, तो तब भी उसकी कुर्बानी लग सकती है। फिर उसका बहुत सारे अयूब से पाक होना जरूरी है। फिक़ह में ये तफसील के साथ बयान किया गया कि किन किन अयूब से जानवर को पाक होना है। हाजी को मुतअय्यिन दिनों में हरम में यानी मिना में कुर्बानी करनी है, और मुतअय्यिन दिनों में है वो है 3 दिन। और जुमहूर अइम्मा, इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल यही फरमाते हैं कि 10 को, 11 को, 12 को। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि 13 तारीख को भी, 13वीं तारीख को भी कर सकते हैं कुर्बानी। उनके पास 2-3 सहाबा के कमजोर आसर हैं जिनकी सनद बहुत कमजोर है। कहते हैं कि इन आसार से पता चलता है कि कुर्बानी 13 तारीख को भी हो सकती है, लेकिन अहनाफ के नजदीक सिर्फ 12 तारीख की शाम तक होगी। ये तो हज के अहकाम है और हज के अहकाम में से एक कुर्बानी है, वरना जो साहिब नसाब हो कुर्बानी के दिनों में उस पर कुर्बानी वाजिब होती है, लाजिम होती है। वयज़कुरु स्मल्लाहि, और ताकि वो जिक्र करें अल्लाह के नाम का, यानी बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर कहें। और ये वाजिब है जब ज़बह किया जाए जानवर तो उस वक़्त ज़बह करने वाला बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर कहे, और इतनी जोर से कहे कि खुद उसको सुनाई दे। ये नहीं कि उसने दिल में पढ़ा, अगर दिल में पढ़ा तो जो है वो जानवर हलाल नहीं है, वो हराम है। पढ़ना ही छोड़ दिया सिरे से तो वो जानवर हलाल नहीं है, हराम है।
اس کی بخشش ہے، اس کی معافی ہے، وہ جانور حلال ہوگا۔ بہت سارے افراد آس پاس میں تھے، ذبح کرنے والے نے بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھا، دوسرے افراد نے پڑھا، تو تب بھی وہ جانور حلال نہیں ہے۔ ضروری ہے اس آدمی کے لیے جو چھری چلا رہا تھا کہ بسم اللہ اللہ اکبر کا لفظ اپنی زبان سے نکالے، اور اتنی زور سے نکالے کہ کم سے کم اپنے آپ کو سنائی دے، جو درجہ اور جو حکم سیدھی نمازوں کا ہے کہ نماز وہ قابل قبول ہے کہ جب سنت پڑھنے والا اتنی زور سے الحمد شریف، اتنی زور سے جو ہے کوئی سورت اور اتنی زور سے تسبیحات پڑھے کہ اپنے آپ کو سنائی دے۔ اگر اپنے آپ کو بھی سنائی نہ دے تو یہ دل کی نماز ہے اور یہ قابل قبول نہیں ہے۔ تاکہ وہ ذکر کریں اللہ کے نام کا متعین دنوں میں، اور متعین دنوں کا ذکر میں نے عرض کیا 10، 11، 12 علی ما رزقہم، ان چیزوں پر جو اللہ رب العزت نے ان کو دیے، من بہیمۃ الانعام، پالتو جانوروں میں سے مویشی، قربانی صرف پالتو جانور کی ہوگی جن کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ ایک اہم مسئلہ بنا لیا ہے ساتھیوں نے کہ بھینس کی قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ قاضی شوکانی بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ان کی ایک کتاب ہے نیل الاوتار۔ اس نیل الاوتار میں انہوں نے لکھا ہے، کسی نے ان سے مسئلہ پوچھا ہے کیا کیا بھینس کی قربانی یا بھینس کا عقیقہ جائز؟ انہوں نے لکھا ہے اپنی اس کتاب میں کہ ہاں، جس طریقے سے اونٹ میں 7 حصے ہیں، جس طریقے سے بڑے دیگر جانوروں میں 7 حصے ہیں، اسی طریقے سے بھینس کے بھی 7 حصے بنیں گے۔ قربانی بھی ہو سکتی ہے، عقیقہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن آج کے کچھ کم فہم لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ بھینس کھانا تو جائز ہے، لیکن نہ اس کی قربانی ہو سکتی ہے، نہ اس کا عقیقہ ہو سکتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ بھینس کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو ہے اس کا حکم وہی ہے جو گائے کا حکم ہے۔ جس طریقے سے 30 گائیوں میں زکوٰۃ ہے، اسی طریقے سے 30 بھینسوں میں زکوٰۃ ہے، اور جس طریقے سے گائے کی قربانی اور گائے کا عقیقہ درست ہے، اسی طریقے سے بھینس کی قربانی اور بھینس کا عقیقہ بھی درست ہے۔ یعنی خیر القرون میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فَكُلُوا مِنْهَا، تو تم کھاؤ اس میں سے۔ یہ حکم ہے چوتھا، تم خود بھی کھاؤ، دوسروں کو بھی کھلا سکتے ہو۔ زمانہ جاہلیت میں جب حج کے لیے لوگ آتے تھے، قربانی کرتے تھے، تو خود قربانی والا نہیں کھا سکتا تھا۔ مشرکین کا یہ معمول تھا، وہ نہ خود کھانے نہیں دیتے تھے اس آدمی کو جس نے قربانی کی۔ اللہ رب العزت نے ان کے اس عقیدے کو رد کر دیا کہ قربانی کرنے والا قربانی میں سے کھا سکتا ہے اور فقیروں کو، تنگدستوں کو، محتاجوں کو کھلا سکتا ہے۔ فَكُلُوا مِنْهَا، تم کھاؤ اس میں سے، وَأَطْعِمُوا، اور کھلاؤ، البائس، پریشان حال کو، الفقیر، جو فقیر ہو۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح فرمائے۔ اس کے بعد ہر اونٹ میں سے ایک بوٹی کاٹی، اس کا شوربہ پکایا، اور آپ علیہ السلام نے اس شوربے کو نوش فرمایا۔ معلوم ہے جو آدمی قربانی کرتا ہے تو وہ خود بھی اس میں سے کھا سکتا ہے اور دوسروں کو بھی کھلا سکتا ہے۔ ثم ليقضوا تفثهم، ایک دوسرا حکم ہے کہ جب 10 ذی الحجہ ہو جائے، 10 ذی الحجہ کو جو ہے آپ مزدلفہ کے میدان سے صبح نکلیں گے تو آ جائیں گے مینا میں، اور مینا میں بڑے شیطان کو کنکر ماریں گے۔ اس کے بعد قربانی ہوگی، اور قربانی کے ساتھ پھر جو ہے آپ کا حلق ہوگا، یعنی آپ سر منڈوائیں گے یا پھر جو ہے بال کٹوائیں گے۔ اس کے بعد آپ کچھ حد تک جو ہے آزاد ہوگے حالت احرام سے۔ آپ پر پابندی تھی، آپ عطر نہیں لگا سکتے ہیں، آپ پر پابندی تھی، آپ اپنے ازواج سے مل نہیں سکتے تھے، آپ پر پابندی تھی، آپ نہا تو سکتے تھے لیکن مونچھیں نہیں کاٹ سکتے تھے، زیر بغل بال نہیں بنا سکتے تھے، داڑھی کو جو ہے
की सफाई सुथराई नहीं कर सकते थे, नहाना भी है तो इतने जोर से अपने बदन को नहीं रगड़ेंगे कि आपके बदन के बाल गिरेंगे। लेकिन अब आपने जो है कुर्बानी कर ली है, आपने हलक कर लिया है, तो आप एक दर्जे में आजाद हो गए हैं। आप बीवी से मिलने के अलावा बाकी तमाम काम कर सकते हैं जो हालत एहराम में आप पर ममनू थे। मसलन नहा सकते हैं, तेल लगा सकते हैं, और इसी तरीके से जो है बदन को रगड़ कर बाल आपके गिरे तो गिरे, मूछें वगैरह और बाल वगैरह जो है मुंडवा सकते हैं, कटवा सकते हैं, चाहे कि वो दूर कर दें अपने मैल को, वल यूफू नुजूरहुम, और अपनी नजरों को पूरा करें। ज़माने कदीम में जब इस्लाम नया नया आया तो बहुत सारे लोग मन्नतें मानते थे कि हम हरम में जाकर कुर्बानी करेंगे, हमारा ये काम हुआ तो हरम में हम इस चीज़ की कुर्बानी करेंगे। इसको भी बताया कि वो अपनी नज़रों को पूरी करेंगे, मन्नतों को पूरा करेंगे। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं यहाँ मतलब है कुर्बानी करना, दोबारा हुक्म दिया गया कि कुर्बानी करें। लेकिन ऐसा भी है कोई आदमी हज के लिए नहीं जाता था उस दौर में, तो एक कुर्बानी भेज देता था ताकि जो है मेरे नाम से वहां कुर्बानी की जाए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब इस्लाम में सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज फरमाया, उसको हज सिद्दीक़ अकबर कहते हैं। इस्लाम आने के बाद पहला हज था। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उसका जिम्मेदार और इमाम बनाकर भेजा गया था। जब मुशरिकीन ने मुआहदे तोड़े थे तो बाद में हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भेजा था कि आप जाकर ऐलान कर दो कि अब हमारे दरमियान और मुशरिकों के दरमियान कोई अहद नहीं, इतने दिनों रहेगा, इतने दिनों के बाद अहद टूट जाएगा। असल में गद्दारी मुशरिकों ने ही की थी, काफिरों ने की थी, अहले ईमान ने इसमें ज्यादती नहीं की थी। तो उस वक़्त हजरत नबी आकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ से 100 बकरियां भेजी थी खाना काबा यानी हरम मक्की की तरफ कि वहां कुर्बान की जाए। अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि उनके गले में जो किलादा बांधना था, यानी पुराने जमाने में जो जानवर हरम मक्की की तरफ लिया जाता था तो उसके गले में बकरी वगैरह होती थी तो धागे वगैरह बांधते थे, बड़ा जानवर होता था तो चमड़े का कोई पट्टा, जूते का कोई टुकड़ा बांध देते थे। ऊंट होता था तो ऊंट की जो कुहान होती थी उस पर थोड़ा सा कट लगाते थे, उसको इशार कहते थे। ये असल में अलामत थी, ये गले में किलादा लटकाना, ऊंट का इशार करना वगैरह, ये अलामत थी कि ये कुर्बानी का जानवर है, इसके साथ छेड़छाड़ न की जाए। तो अगर किसी ने हरम मक्की की तरफ कुर्बानियां भेजी हैं तो उन कुर्बानियों को किया जाए। वलियत्तवफ़ू बिल बैतिल अतीक, और उनको चाहिए काबिल तकरीम घर का तवाफ करना, चाहे कि वो तवाफ करें। अल अतीक के माना आते हैं पुराना, तो खाना काबा सबसे पुराना है इस जमीन पर, और अल अतीक के माना आते हैं आजाद किया हुआ। तो खाना काबा तमाम गलाजतों से और तमाम मुशरिक हुकूमतों से आजाद किया हुआ है, इस वजह से अतीक कहते हैं। तीसरे माना है अतीक के ऐसी चीज जो काबिल इज्जत हो, जो मुहतरम हो, काबिल इकराम हो। तो जाहिर सी बात है खाना काबा अगर काबिल इकराम नहीं है इस सरजमीन पर तो फिर और कोई चीज हो नहीं सकती है। तो आप एक हुक्म दिया गया रब ताला की तरफ से कि वलियत्तवफ़ू, चाहे कि वो तवाफ करें, और ये उम्रे का जो तवाफ है वो भी जो है फर्ज होता है, और हज का एक तवाफ है जो 10 को करना होता है। अगर 10 को नहीं किया तो 11-12 को करना होता है, उसको तवाफ ज़ियारत कहते हैं। उसके बगैर हज नहीं है। हज में 2 ही फर्ज हैं, उसमें से जो है एक तो अरफा के मैदान में क़याम है जोहर से लेकर गुरूब आफ्ताब तक 9 ज़िलहिज्जा को, और दूसरा जो है हज का फर्ज है वो तवाफ इफाजा भी कहते हैं, तवाफ ज़ियारत भी कहते हैं। इसकी इब्तिदा 10 तारीख से होती है।
وَلْيَطَّوَّفُوا اور چاہے کہ وہ طواف کریں بالبیت العتیق قابل تکریم قابل عزت گھر کی یا پرانے گھر کی یا اس گھر کی جو آزاد کیا ہوا ہو. اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان